So, good morning and welcome to this Mechatronics online lecture. In the last lecture, we started with PLC programming, that is ladder programming. Okay, there we have seen that in the ladder programming there are two power rails. The this left side is the input rail, right side output rail. All the input devices are arranged in the left half of the ladder, and all the output devices are arranged on the right half of the ladder. All the input devices are represented by using symbols like normally open and normally closed switch, and all the output devices are represented by symbol called circle. And then we have seen the logics and logic and OR logic, how these logics can be implemented in the ladder programming. Today's topic is timers and counters. Okay. Now, before moving on to this topic, timers and counters, let me just tell you one thing that this entire ladder programming works on the principle of relay. Okay. It works on the principle of relay. So, how this relay works? So, relay, what do you mean by relay? Or where you heard this term relay? Anybody? What is relay? So ये relay क्या होता है? Hmm? Cinderella, what is relay? Ritik says magnetic switch. Okay. तो ये relay क्या होता है? ध्रुवित, Yes, sir. what do you mean by relay? I'm not asking the technical answer. You can give the meaning of relay from the dictionary also. So what is the dictionary meaning of relay? So it is a kind of switch which gives outputs when the input is supplied in series. I think अच्छा, so. ये स्पीचेस का कंसेप्ट छोड़ दो. आपने एथलेटिक्स देखा है? एथलेटिक्स Yes, sir. रनिंग रनिंग Yes, sir. तो उसमें 100 मीटर्स रहता ये है, सर रिले रहता है. 200 मीटर्स रहता है, देन 4 into 400 मीटर्स का एक रिले रेस रहता है. ये सर देखा है. वो रिले रेस क्या रहता है? Sir, in this race there are four athletics running one after the other. They have to pass the torch, and if one disconnected, it disqualifies it. So in that relay race, the baton has to be given to the next Yes, athlete, sir. and once the baton is passed, and then the next athlete start running, and once he finish, then another uh, athlete running. So that is called a relay. So baton is passed from one athlete to another, and that's how that relay race completes. So this relay means passing on something to the another one. So that is you can say a dictionary meaning of relay. Now we'll Okay, see sir. this. Yes. Now we'll see this concept relay in ladder programming also. So like you also said, and Ritik also said that it is a kind of a switch. Relay is a switch. So relay is a correct switch. Correct answer. A relay is a switch uh, by which you can control a very large circuit with very small circuit. Okay, you can control a large circuit. For example, a बहुत बड़ी एक हाई टेंशन वोल्टेज का सर्किट है. वो हाई टेंशन वोल्टेज का सर्किट एक स्मॉल 5 वोल्ट के डीसी सर्किट से भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट इज रिले स्विच. तो ये रिले स्विच में क्या होता है कि
मैं यहाँ पे रिले बना रहा हूँ। So consider now consider this is an electromagnetic coil. Electromagnetic coil. Okay. And when this switch is closed, then this magnetic core get energized. That this magnetic core get magnetized, and because this is magnetized, this you can say a magnetic part attracts towards this magnetic core, and because of that the connection is established, and this high voltage circuit or large circuit gets completed. This is a large circuit. We are controlling the large circuit by using a small circuit. Okay. So here what happens? There is electromagnetic coil, and it is wound around a magnetic core. And when you press this switch, then the electromagnetism occurs in that core, and because of that, this core get magnetized. And once this core get magnetized, this switch attracts towards the core, and because of that, this pivoted section will turn the switch upward, and because of that the connection establishes in the large circuit, and this is how a big circuit is controlled by using a small circuit. So that is the basic concept of a relay coil. Okay, once the supply or once the switch is operated here, and then this switch magnetizes this core, and this because of this electromagnetism, this switch is attracted towards the core, and because of that, the connection establishes over here, and because of that, this large circuit gets completed, and the current starts flowing from this large circuit. So that means we are controlling the large circuit by using a very small circuit. Okay, and here the control is here. That means the band is passed from a small circuit to large circuit. So that is called relay switch. यानी एक स्विच ऑपरेट किया तो दूसरा जो सर्किट है वो वर्क करता है. इसको अगर ओपन कर दिया तो ये पूरा सर्किट जो है, अगर यहाँ पे स्विच प्रेस किया तो ये मैग्नेटाइज होगा, तो ये स्विच जो है ये अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे सर्किट क्लोज होगा. यहाँ सर्किट क्लोज हो गया तो जो करंट है वो बड़े वाले सर्किट में पास ऑन होगा, और ये स्विच अगर अपन ने ओपन कर दिए तो ये जो कोर है ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. डीमैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो है ये वाला जो पार्ट है मैग्नेटिक पार्ट वो ऊपर की तरफ जो है वो थ्रोबैक होगा, और ये थ्रोबैक होने से यहाँ पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये बड़ा वाला जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट होके उसमें जो करंट पास होना स्टॉप हो जाएगा.
तो इस तरह से एक छोटे से स्विच से हम एक बड़ा वाला सर्किट जो है ये ऑपरेट कर रहा है. This is a relay logic, and this same relay logic is used everywhere in the ladder programming, in the PLC programming. Okay? So this is the relay logic. आपको ये समझ में आ गया relay logic क्या है? Yes, sir. Now we move on to the today's topic, that is timers and controls. Now we'll see what is timers and what is control. Now timers. First we'll see timers. इसको हम बाद में देखेंगे counters क्या है. पहले हम देखते हैं कि what is timers. So timer means it counts the timing. Okay. So like for example, if this is a workstation. This is a workstation. Okay. यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है. वर्क स्टेशन के ऊपर में बॉक्स रखा है. हम इसका जो है टॉप व्यू देख रहे हैं. ये जो वर्क स्टेशन है यानी ये एक टेबल है, वर्क टेबल है, वर्किंग टेबल है, उसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं. ओके. तो टॉप व्यू में यहाँ पे ये टेबल के ऊपर में एक बॉक्स रखा हुआ है. अब ये बॉक्स को यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर से, न्यूमेटिक सिलेंडर एक न्यूमेटिक सिलेंडर है और यहाँ पे एक दूसरा न्यूमेटिक सिलेंडर है. अब ये एक न्यूमेटिक सिलेंडर है और ये एक न्यूमेटिक सिलेंडर है. तो ये जो बॉक्स है ये पैकेजिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं. एक पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक बॉक्स है. जो प्रोडक्ट है वो बॉक्स के अंदर पैक हो गया है. अभी हमको इसके ऊपर में जो है स्टिकर चिपकाना है. तो स्टिकर चिपकाने का काम जो है ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर है ये कर रहा है. तो क्या हो रहा है कि जब हमको ऐसा चाहिए कि बटन प्रेस किया तो ये जो है न्यूमेटिक सिलेंडर ये एक्सटेंड होना चाहिए और ये एक्सटेंड होके यहाँ पे जो भी पोस्टर है वो या जो भी सिंबल है वो एम्बोस सिंबल वहाँ पे हिट करना चाहिए ताकि वहाँ पे वो छप्पा जो है वो उसका कंपनी का लोगो आ जाए. और वहां पे वो जो सिलेंडर है ये 5 सेकंड एक्सटेंडेड पोजीशन में रहे. क्योंकि हम जब कोई स्टैम्प मारते हैं तो थोड़ा सा उसको और 2-3 सेकंड दबा के रखते हैं ताकि जो इम्प्रेशन है स्टैम्प का वो अच्छे से आ जाए. वैसे ही हमको ये चाहिए कि जब ये न्यूमेटिक सिलेंडर एक्सटेंड हो तो एक्सटेंड होने के बाद वहां पे से एक्सटेंड होके वापस ना आए. हमको चाहिए कि वो एक्सटेंड हो और वहां पे 5 सेकंड रुके और 5 सेकंड रुकने के बाद वो रिट्रैक्ट हो, सिलेंडर रिट्रैक्ट हो. सो सिलेंडर एक्सटेंड हो, 5 सेकंड रुके और सिलेंडर 5 सेकंड के बाद रिट्रैक्ट हो. अगर ऑपरेशन है तो उसके लिए हमको ये टाइमर की जरूरत पड़ती है. कोई भी एक्टिविटी को अगर हमको डिले करना है 5 सेकंड से 10 सेकंड से 15 सेकंड से जितना भी आपको टाइमिंग सेट करना है उतने से अगर एक्टिविटी को डिले करना है तो ये टाइमर्स यूज होता है. Okay? तो ये टाइमर्स है. आपको शायद टाइमर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. व्हाट द टाइमर्स इज. How we'll see the different types of timers. तो टाइमर तो हमको समझ में आ गया कि टाइमर बोला तो कोई भी एक्टिविटी को डिले करना है. ओके. तो उतने टाइम के लिए वो एक्टिविटी को डिले करना है, ये टाइमर का मतलब है. अब टाइमर में 3 प्रकार है. सबसे पहले टाइप्स ऑफ टाइमर्स. टाइप्स. So first is on timer. On timer और जिसको बोलते हैं टॉन. T on, टाइमर ऑन.
दूसरा है ऑफ टाइमर, इसको बोलते हैं टॉप। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है पल्स डिले। Pulse delay. So there are three types of timers. One is on timer, इसको TON टॉन बोलते हैं या टन। ऑफ टाइमर that is TOF top and pulse delay. So these are the three types of timers that we use in the ladder programming. These are the three types. What are those? On timer, off timer, pulse delay. So these are the three timers that we use in the ladder programming. Now we will see what is on timer. अब on timer बोला तो क्या है कि first we will see the on timer. पहले हम टर्म देखते हैं यानी ऑन टाइमर। सो टर्म स्टैंड्स फॉर ऑन टाइमर। Now there are two conditions. This is and this is on. तो टाइमर क्या करता है, पहले ऑफ रहता है और फिर ऑन हो जाता है। ओके, यानी टाइमर पहले ऑफ रहता है और फिर कुछ सेकंड बाद वो ऑन हो जाता है। ओके, सो इनिशियली इट इज ऑफ, देन इट बिकम्स ऑन। देन दूसरा है टॉप। टॉप क्या रहता है, पहले ऑन रहता है, यानी जैसे मोटर है। ऑन टाइमर बोला तो एक मोटर है, ये मोटर पहले बंद है और फिर उसको उसका ओपनिंग डिले करना है तो आपको ऑन टाइमर यूज करना पड़ेगा। अगर मोटर चालू है उसका ऑफ डिले करना है, जैसे मैंने बटन ऑफ का प्रेस किया तो तुरंत मोटर ऑफ नहीं होना चाहिए, 5 मिनट बाद मोटर ऑफ होनी चाहिए। तो उसके लिए ये ऑफ टाइमर यूज होता है। तो इनिशियली ये ऑन है और फिर ये ऑफ हो जाता है और इनिशियली ये ऑफ है और सेकंड के लिए ऑन है फिर ऑफ है। तो ये जो है ये 3 टाइप के टाइमर्स है। पहला है ऑन टाइमर। ऑन टाइमर बोला तो पहले ऑफ है और फिर ऑन किया और फिर डिले। जैसा कि इसका अगर एग्जांपल देते बोले तो आपके यहाँ सबके यहाँ पे जो है ओवरहेड टैंक है। ओके, एक टैंक ऊपर पे रहता है, एक टैंक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। सो ग्राउंड फ्लोर का जो टैंक रहता है उसमें कॉर्पोरेशन का पानी आके जमा होता है और फिर वो नीचे वाले टैंक पे एक मोटर लगी हुई रहती है जो कि वो मोटर या जो पंप है वो पानी को पंप करता है ऊपर वाले टैंक में। और वहां पे मोटर के लिए 2 स्विचेस दिया रहता है, एक ऑन स्विच एंड एक ऑफ स्विच। अब उसका एग्जांपल लेके हम ये ऑन टाइमर एंड ऑफ टाइमर ये समझने का कोशिश करते हैं। ऑन टाइमर क्या है कि मोटर ऑफ है, हमने स्विच ऑन की बटन प्रेस किया तो
स्विच ऑन की बटन प्रेस करते ही मोटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसके 5 सेकंड बाद मोटर स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको ये ऑन टाइमर जो है ये वाला टाइमर यूज करना पड़ेगा, काम वाला टाइमर यूज करना पड़ेगा। यानी हमने मोटर का स्विच प्रेस किया, मोटर का स्विच प्रेस करते ही मोटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसके 5 सेकंड बाद मोटर स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको ऑन टाइमर यूज करना पड़ेगा। ऑफ टाइमर में क्या है कि मोटर ऑन है, यहाँ पे देखो पहले मोटर क्या थी, ऑफ थी, हमने स्विच प्रेस किया और उसके बाद टाइमर चालू होता है और उसके बाद फिर मोटर चालू होती है। ऑफ टाइमर में क्या है कि मोटर ऑन है, यानी मोटर चालू है अभी, हमने ऑफ का बटन प्रेस किया, ऑफ का बटन प्रेस करते ही मोटर बंद नहीं होना चाहिए, उसके 5 सेकंड बाद मोटर बंद होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको टाइमर ऑफ ये वाला यूज करना पड़ेगा। और पल्स डिले बोला तो मोटर ऑफ है, हमने ऑन का बटन प्रेस किया और ऑन का बटन प्रेस करते ही उसने सपोज 10 सेकंड चालू रहना चाहिए और 10 सेकंड बाद अपने आप बंद होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो पल्स डिले यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर एंड पल्स डिले कि इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. Clear. क्लियर है? No, sir, no doubt. नो डाउट। ओके ओके, तो ये समझ गया। टाइमर ऑन बोला तो पहले मोटर ऑफ है, आपका घर का इमेजिन करो कि आपके ओवरहेड टाइम का जो मोटर है पहले ऑफ है, फिर हमने स्विच ऑन का बटन प्रेस किया, लेकिन स्विच ऑन का बटन प्रेस करते ही मोटर चालू नहीं हुई, उसके 5 सेकंड टाइमर लगाया हमने, तो 5 सेकंड बाद मोटर चालू होगी, सो दैट इज टाइमर ऑन। टाइमर ऑफ बोला तो मोटर घूम रही है, मोटर घूम रही है, मोटर ऑन है और हमने ऑफ का बटन प्रेस किया, लेकिन मोटर तुरंत ऑफ नहीं होगी, मोटर जो है 5 सेकंड के बाद ऑफ होगी। तो ऐसे समय पे ये टाइमर ऑफ वाला टाइमर यूज करेंगे। और पल्स डिले बोला तो मोटर ऑफ है, हमको चाहिए कि एक 10 सेकंड के लिए मोटर ऑन होके ऑफ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, लेकिन वहां पे पल्स डिले वाला टाइमर लगाए तो स्विच ऑन करने के बाद मोटर तो ऑन हो जाएगी, लेकिन 10 सेकंड बाद अपने आप जो है मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है 10 सेकंड के पीरियड के बाद मोटर अपने आप ये ऑफ हो जाएगी, जो कि 10 सेकंड 5 सेकंड या जो भी आपका टाइमर का ये है सेटिंग है उसके हिसाब से जो है वो आपकी मोटर वर्क करेगी। तो ये हो गया लॉजिक, टाइमर का जो लॉजिक है। अभी वो टाइमर का लॉजिक जो है वो लैडर प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑन टाइमर का, ऑन टाइमर का यहाँ पे लैडर लॉजिक बनाया हुआ है। तो ऑन टाइमर का देखो, दिस इज एन इनपुट स्विच x0। x0 बोला तो जो ओवरहेड टाइम का हमने एग्जांपल ले रहे हैं, वो ओवरहेड टाइम के एग्जांपल में जो स्विच जो आप प्रेस करते हो वो x0, ये वाला जो है ये ऑन ऑफ स्विच है x0। तो x0 जब आप स्विच प्रेस करते हो तो क्या हो जाएगा, टाइमर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टी जो दिख रहा है, ये टी क्या है, ये टाइमर है। टाइमर का भी जो सिंबल है वो सर्कल ही है। तो ये टाइमर यहाँ पे 5 सेकंड का सेट किया है, यानी अगर हमने मोटर का स्विच प्रेस किया तो टाइमर जो है ये 5 सेकंड काउंट करना चालू हो जाएगा। उसका जो इंटरनल क्लॉक रहता है वो इंटरनल क्लॉक जो है वो 5 सेकंड काउंट करना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही ये
5 सेकंड टाइमर जो है वो काउंट करना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक रिले स्विच है, ये टाइमर की एक रिले स्विच है, ये नॉर्मली ओपन है, यानी अभी जो है इसका और इसका कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो रिले स्विच है इसको सिग्नल मिलेगा और ये क्या हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी। तो रिले स्विच क्लोज होने की वजह से यहाँ से जो 24 वोल्ट सप्लाई है, 24 वोल्ट जो हमको पता है कि ये इनपुट रेल है, इनपुट रेल को 24 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। तो ये 24 वोल्ट सप्लाई जो है वो मोटर को जाएगा और यहाँ पे ये मोटर जो है ये घूमना चालू होगी। तो ये है ऑन टाइमर का लॉजिक। हमने स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस करते ही, यानी अभी ये नॉर्मली क्या है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, लेकिन हम स्विच जब प्रेस करेंगे, हम जब एक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज होते ही ये टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन हो गया तो इसका ये जो इंटरनल रिले स्विच है जो कि नॉर्मली ओपन है, ये टाइमर टाइम कंप्लीट होते ही ये जो है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई मोटर को मिलेगा और मोटर जो है वो घूमना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑन टाइमर का ये लॉजिक या लैडर प्रोग्राम। अब इसका अगर हमने टाइमिंग डायग्राम देखे तो ये टाइमिंग डायग्राम जो है, टाइमिंग डायग्राम में ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट में क्या है, पहले ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है, यहाँ पे इतने देर के लिए जो है ये स्विच नहीं था, फिर यहाँ पे ये क्या हुआ, ये स्विच हमने ऑन किया, स्विच ऑन किया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सप्लाई मिलना यहाँ पे चालू हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यू है। लेकिन आउटपुट में आपको कैसा मिलेगा, आउटपुट में ये भले ही यहाँ पे सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट में सप्लाई मिलेगा क्या, कि मोटर को सप्लाई मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ पे सप्लाई कब मिलेगा, यहाँ पे सप्लाई मिलने के 5 सेकंड बाद। तो यहाँ पे जो है इसके बाद 5 सेकंड और रुकना पड़ेगा और 5 सेकंड रुकने के बाद फिर ये जो है इसमें आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में जो मोटर है वो ऑन होगी। तो ये अगर ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन है इसका इनपुट स्विच का, ये इनपुट बोला तो इनपुट स्विच, तो इनपुट स्विच का ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन है। तो इनपुट स्विच जो है ये पॉइंट पे जो है ऑन हो गई, इनपुट स्विच ये पॉइंट पे ऑन हो गई, ओके, इतने देर तक ये ऑन है। लेकिन आउटपुट जो है वो आपको मिल रहा है कि तुरंत नहीं, आपको ये आउटपुट का ये ऑफ पोजीशन है। आउटपुट बोला तो यहाँ पे मोटर है, इनपुट स्विच है, आउटपुट मोटर है। तो मोटर जो है वो ऑफ रहेगी और ये ऑन कब होगी, ये ऑन होगी ये स्विच के ऑन होने के 5 सेकंड के बाद में, 5 सेकंड के बाद में ये मोटर ऑन होगी। और जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर सप्लाई रुक जाएगा, यहाँ टाइमर को पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और ये जो नॉर्मली ओपन स्विच है ये ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो ये जैसे ही ऑफ होता है वैसे ही मोटर भी ऑफ हो जाएगी, जैसे ही स्विच ऑफ होता है मोटर भी ऑफ हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑन करने में डिले किया, ऑफ करने में डिले नहीं किया, ऑन करने में डिले किया, इसलिए इसको ये टाइमर को बोलते हैं ऑन टाइमर। ओके, ये टाइमर को बोलते हैं ऑन टाइमर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ टाइमर। ऑफ टाइमर क्या है? अब जैसे कि ऑफ टाइमर बोला तो बंद करने में डिले करता है, चालू करने में डिले नहीं करता है। चालू तो जैसे ही बटन दबाया तो वैसे ही मोटर चालू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो जो है ऑफ करने में डिले करता है। तो ये है ऑफ टाइमर। तो यहाँ पे वैसे ही देखा जाए तो ये इनपुट स्विच है, हमने ये प्रेस किया तो यहाँ पे ऑफ टाइमर चालू हो गया। ऑफ टाइमर फॉर एग्जांपल
5 सेकंड का है। तो ये 5 सेकंड जब कंप्लीट होंगे उसके बाद ये जो नॉर्मली ओपन स्विच है ये क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने से मोटर को सप्लाई मिलेगा और ये मोटर वर्क करना चालू होगा। ओके, तो ये है ऑफ टाइमर का, यानी अब इसका अगर टाइमिंग डायग्राम देखेंगे तो ये इनपुट स्विच है, ये इनपुट स्विच, ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन है। तो स्विच जो है यहाँ तक ऑफ है, फिर यहाँ पे ऑन किया, यहाँ तक ये ऑन रही, फिर ये ऑफ हो गई और ये फिर ऑफ है। लेकिन आउटपुट जो मोटर है, आउटपुट जो मोटर है, ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन है। तो मोटर जो है जब तक स्विच ऑन था, स्विच ऑफ था, मोटर ऑफ थी, जैसे ही स्विच ऑन कर दिया मोटर भी ऑन हो गई, फिर इतने देर तक स्विच ऑन रहा, फिर स्विच ऑफ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है स्विच ऑन रहा, लेकिन उसके बाद ऑफ जो है ये यहाँ पे ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पे मोटर ऑफ नहीं हुई। यहाँ पे 5 सेकंड का डिले हो गया, और 5 सेकंड की डिले के बाद जो है ये मोटर जो है ये ऑफ हो गई। तो अगर ये स्विच अगर 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए ऑन थी, और इसका टाइमर अगर 5 सेकंड के लिए सेट किया है, तो इसका टोटल जो मोटर कितने देर के लिए चालू थी? आपको क्वेश्चन समझाएगा कि यहाँ पे ये स्विच 5 सेकंड के लिए प्रेस थी, यानी 5 सेकंड के लिए ये ऑन था, और ये ऑफ टाइमर जो है ये 5 सेकंड के लिए सेट किया है। तो आप बता सकते हैं कि ये मोटर जो है ये कितने देर के लिए चालू थी? सर 10 सेकेंड। 10 सेकंड, करेक्ट, 10 सेकंड के लिए, क्योंकि स्विच ऑन और मोटर ऑन का टाइमिंग सेम है। अब स्विच जो है 5 सेकंड के लिए ऑन था, तो मोटर तो वो 5 सेकंड के लिए रह गई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑफ टाइमर लगा हुआ है 5 सेकंड के लिए, तो मोटर 5 सेकंड और उसका ऑफ होना डिले करेगा, और फिर 5 सेकंड बाद वो ऑफ होगा। तो यहाँ पे टोटल जो मोटर है ये 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड, टोटल 10 सेकंड के लिए मोटर जो है वो ऑन रहेगी। तो यहाँ पे मोटर ऑन और स्विच ऑन, इनपुट और आउटपुट का स्विच ऑन होने का जो टाइमिंग है वो सेम है, लेकिन ऑफ होने का जो टाइमिंग है वो 5 सेकंड से डिले है, इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं ऑफ टाइमर। ओके, और ऑफ ऑफ टाइमर और टॉप जिसको बोलते हैं TOF। अब तीसरा जो है ये तो हो गया, ऑन टाइमर हो गया, ऑफ टाइमर हो गया। अभी अभी आता है पल्स डिले। तो पल्स डिले क्या है ये देखते हैं। तो पल्स डिले जैसा कि मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर हमको फिक्स टाइम के लिए अगर आउटपुट चाहिए, ना उसके पहले चाहिए ना उसके बाद चाहिए, तो अगर ऐसा अगर आपका सिचुएशन है तो आपको पल्स डिले वाला जो टाइमर है वो यूज करना पड़ेगा। तो पल्स डिले वाला टाइमर देखो, यहाँ पे इनपुट ये स्विच है, इनपुट स्विच है, यहाँ पे ये पल्स डिले का टाइमर लगा हुआ है। ये पल्स डिले का टाइमर जो है ये नॉर्मली क्लोज्ड स्विच के साथ यहाँ पे रिले किया हुआ है, यानी ये देखो यहाँ पे ये T1 है, ये भी T1 है, यानी जैसा कि हमने ये इनपुट स्विच है, ये इनपुट स्विच ऑफ है, फिर इसको ऑन किया, इसका मतलब हमने क्या किया, ये X0 को प्रेस किया, X0 को प्रेस किया तो ये जो है कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गए, कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गए। तो यहाँ पे ये टाइमर जो है ये काम करना चालू करेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर लगा है, टाइमर कितने देर के लिए लगा है, 5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड यहाँ पे काउंटिंग चालू होगा। तो यहाँ पे देखो स्विच ऑन हो गया तो मोटर भी ऑन हो गई। ओके,
ये यहाँ से ये क्योंकि नॉर्मली क्लोज स्विच है, तो नॉर्मली क्लोज स्विच में सप्लाई जो है ये कंटिन्यू रहेगा मोटर को भी। तो जैसे ही ये स्विच क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे टाइमर चालू हो जाएगा और यहाँ से मोटर भी चालू हो जाएगी। लेकिन 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद क्या होगा कि ये टाइमर का काउंटिंग कंप्लीट होगा, और टाइमर का काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद इसका जो पोजीशन है, ये नॉर्मली क्लोज है तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और नॉर्मली ओपन होने की वजह से ये जो है मोटर के साथ जो इनपुट वोल्टेज का जो कनेक्शन है वो डिटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भले ही प्रेस है लेकिन 5 सेकंड बाद मोटर बंद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो कि आउटपुट का मोटर जो है जैसे ही स्विच दबाया वैसे ही मोटर स्टार्ट हो गया, लेकिन टाइमर 5 सेकंड का लगा हुआ है, तो यहाँ पे 5 सेकंड बाद जो है मोटर बंद हो गया है, जबकि स्विच ऑन है। स्विच ऑन होने के बाद भी मोटर जो है वो 5 सेकंड के लिए ऑपरेट होके ऑफ हो गया। तो इसको बोलते हैं पल्स डिले। और यहाँ पे ये जो रिले लॉजिक यूज किया है ये नॉर्मली क्लोज कर दिया है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये टाइमर अपना स्टेटस कब चेंज करेगा, 5 सेकंड बाद स्टेटस चेंज करेगा। तो 5 सेकंड बाद अगर स्टेटस चेंज करेगा तो ये नॉर्मली क्लोज स्विच का जो स्टेटस है वो भी 5 सेकंड बाद चेंज होगा। तो 5 सेकंड बाद इसका स्टेटस नॉर्मली क्लोज टू नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली ओपन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मोटर जो है ये 5 सेकंड बाद रुक जाएगा। तो ये जो लॉजिक है ये है पल्स डिले का। तो इस तरह से ये ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर, पल्स डिले, ये 3 लॉजिक है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये इसका देखते हैं काम का। इसमें क्या है, ये इनपुट स्विच है X0 जो कि नॉर्मली ओपन है। यहाँ पे ये टाइमर है, यहाँ पे टाइमर हमने 5 सेकंड का सेट किया है। इसका ये रिले स्विच है, ये नॉर्मली ओपन है, टी नाम का। ठीक है, यहाँ पे टी हमने यूज किया, यहाँ पे भी टी, यानी इसका मतलब क्या है, ये दोनों टी जो है ये रिले में है। अगर आपने सेम नंबर यूज किया है, सेम नाम यूज किया है इसको और इसको, इसका मतलब ये क्या है, ये रिले में है, और यहाँ पे ये मोटर। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है कि पावर सप्लाई जो है ना टाइमर को मिल रहा है ना मोटर को मिल रहा है। पावर सप्लाई जो है यहाँ से ये डिटैच है। जब हम ये स्विच ऑपरेट करेंगे, यानी स्विच का स्टेटस चेंज करेंगे, पहले नॉर्मली ओपन है तो उसको अगर क्लोज करेंगे, तो इसको अगर हमने क्लोज किया यानी स्विच को ऑपरेट किया, तो स्विच को ऑपरेट करने से क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई यहाँ पे चालू हो जाएगा। लेकिन पावर सप्लाई यहाँ पे चालू होने के बाद भी ये टाइमर जो है, ये टाइमर का काउंटिंग चालू होगा लेकिन उसका स्टेटस चेंज नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से स्टेटस चेंज नहीं करने की वजह से ये जो इसका रिले स्विच है, इसका रिले स्विच ये नॉर्मली ओपन ही रहेगा। लेकिन जैसा ही यहाँ पे 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और 0 आता है, 5 सेकंड यानी इसका काउंटर कंप्लीट होता है, तो ये अपना स्टेटस चेंज करेगा। टाइमर का अपना स्टेटस चेंज होता है, जिसकी वजह से ये जो स्विच है ये भी अपना स्टेटस चेंज करेगा, और ये फिर इसको सप्लाई जो है मोटर का सप्लाई ये चालू हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही स्विच अपन ओपन करते हैं वैसे ही मोटर चालू नहीं होता है। स्विच ऑपरेट करने के 5 सेकंड बाद जो है मोटर चालू होता है, और जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच छोड़ दिया तो ये टाइमर जो है ये अपना स्टेटस चेंज करेगा। स्टेटस चेंज करते ही ये फिर से नॉर्मली ओपन हो जाएगा और ये मोटर जो है ये घूमना स्टॉप हो जाएगा। तो ऑन किया तो ये ऑन नहीं होता है, इसमें डिले आता है।
लेकिन ऑफ अगर करते हैं स्विच तो मोटर एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऑफ होने में स्विच और मोटर जो है वो सेम ऑपरेट करती है, लेकिन ऑन होने के लिए जो है मोटर 5 सेकंड डिले होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो टाइमर है इसको ऑन टाइमर बोलते हैं। सिमिलरली ऑफ टाइमर, ऑफ टाइमर में क्या है कि यहाँ पे ये इनपुट स्विच है नॉर्मली ओपन, पावर सप्लाई नहीं है, यहाँ पे ये टाइमर है। ओके, यहाँ पे टाइमर 5 सेकंड के लिए सेट किया हुआ है। ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, मोटर है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने स्विच अभी प्रेस नहीं किया है, तो टाइमर जो है ये ऑन नहीं है। ये टाइमर ऑन नहीं होने की वजह से इसका स्टेटस जो है एबीटी है, इसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मोटर में अभी पावर नहीं है। लेकिन अगर हमने ये स्विच को प्रेस किया तो स्विच को प्रेस करते ही ये जो है ये टाइमर अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर देगा। टाइमर जो है अपना स्टेटस चेंज करेगा और ये स्विच जो है ये क्लोज हो जाएगा और मोटर जो है ये चालू हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा। अब जैसे ही हमने ये स्विच जो है ये छोड़ दिया, यानी स्विच को प्रेस करके रखा था लेकिन अभी छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद इसका जो है टाइमिंग चालू हो जाएगा। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। तो ये स्विच जो है ये स्विच छोड़ने के बाद 5 सेकंड बाद ये अपना स्टेटस चेंज करेगा और फिर बाद में ये जो नॉर्मली क्लोज स्विच है ये अपना स्टेटस चेंज करेगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये मोटर जो है वो ऑपरेट करना स्टॉप हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो डिले है ये ऑफ टाइमर है। ओके, तो ये जैसे ही पावर सप्लाई इसको मिलता है तभी ये अपना स्टेटस चेंज करता है और इसका स्टेटस चेंज होने के बाद तुरंत अपना स्टेटस चेंज नहीं करता है, 5 सेकंड बाद अपना स्टेटस चेंज करता है। तो इस तरह से ऑफ टाइमर है। और ये जो है ये पल्स स्विच है। पल्स स्विच बोलो तो यहाँ पे हमने स्विच प्रेस किया तो टाइमर जो है वो ऑन हो गया। जैसे टाइमर ऑन हो जाता है तो यहाँ से नॉर्मली क्लोज होने की वजह से यहाँ से सप्लाई मिलता है, मोटर ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही टाइमर 5 सेकंड कंप्लीट करता है तो ये अपना स्टेटस चेंज करता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मली क्लोज स्विच है ये नॉर्मली ओपन हो जाता है और मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और मोटर एग्जैक्टली 5 सेकंड बाद जो है वो वर्क करना स्टॉप करती है। तो ये जो है ये 3 प्रकार के ये टाइमर्स है। तो ये समझ में आएगा आपको कि इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो एनी डाउट नहीं है, ये समझ में नहीं आया? Sir, no doubt. नो डाउट, गुड। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो 3 प्रकार के टाइमर्स, टाइम ऑन यानी ऑन करने में डिले, टाइम ऑफ ऑफ करने में डिले एंड पल्स डिले। बोला तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर आपको ऑन करना है तो आप ये वाला टाइमर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार की ये टाइमर है। तो ये टाइमर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है काउंटर वाला टॉपिक। अब टाइम उतना बचा हुआ नहीं है तो काउंटर वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो टाइमर्स और काउंटर्स ये जो है इसमें क्या डिफरेंस है? तो टाइमर्स बोला तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड, तो इसको बोलते हैं टाइमर। लेकिन जो काउंटर्स है, काउंटर्स बोला तो वो इंस्टेंसेस मेजर करता है। काउंटर बोला तो इंस्टेंसेस मेजर करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देता बोले, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है।
ये इसके रोलर्स हैं, कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वेयर बेल्ट से यहाँ से एक प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे कन्वे होके फिर ये कन्वेयर बेल्ट पे आ रहा है और यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ये नीचे बिन है या बॉक्स है, बॉक्स में जा रहा है और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ये एक सेंसर है। अब ये एक बॉक्स आया, पहला बॉक्स आया, ये सेंसर ने काउंट किया ये, और ये उसके बाद ये बॉक्स जो है ये बॉक्स के अंदर ये छोटा वाला प्रोडक्ट बोलो, ये बॉक्स के अंदर जो है वो नीचे गिर गया। हमको चाहिए कि बॉक्स में 5 आइटम्स आए, 5 आइटम्स। ये एक बॉक्स में 5 आइटम्स आए, जैसे ही 5 आइटम्स आए तो ये बॉक्स जो है ये क्लोज हो जाएगा और फिर डिस्पैच हो जाएगा। अब ये 5 आइटम्स जो है वो काउंट करना है। तो पहला आइटम आया, पहला आइटम ये सेंसर ने काउंट किया, फिर दूसरा आइटम आया, ये सेंसर ने काउंट किया, फिर तीसरा आइटम आया, फिर ये सेंसर ने काउंट किया, फिर चौथा आइटम आया, फिर ये सेंसर ने काउंट किया और यहाँ पे आ गया, फिर 5वां आइटम आया, ये सेंसर ने काउंट किया। तो 5 आइटम्स कंप्लीट हो गए। 5 आइटम्स कंप्लीट होते ही ये बॉक्स जो है ये भर गया। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं इंस्टेंसेस को काउंट करना है। ओके, अब ये 5 आइटम जो है ये 5 सेकंड में आए कि 10 सेकंड में आए कि 15 सेकंड में आए कि आधे घंटे में आए, लेकिन जब भी आए, जब तक ये 5 आइटम्स को डिटेक्ट नहीं करता तब तक जो है ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही 5 आइटम्स ये सेंसर ने आइडेंटिफाई कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये कन्वेयर बेल्ट ये स्टॉप हो जाएगा। ये कन्वेयर बेल्ट स्टॉप होने के बाद ये बॉक्स जो है ये बॉक्स का पैकिंग होगा, इसकी जगह एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो काउंटर है, ये काउंटर क्या करता है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को काउंट करता है। ओके, तो एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, तो जितने भी आपको काउंट करना है वो इंस्टेंसेस को काउंट करता है। तो ये काउंटर क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज का अटेंडेंस हमें ले लो। हो सर 1 मिनट। हाँ, तो हो सर घेतली अटेंडन्स बर ठीक है। So that's it from today's lecture. See you in the next lecture. Thank you very much for attending this class. Have a nice day. Have a nice weekend. Thank you. You can leave the meeting now. Thank you, sir. Thank you. Thank you. थँक्यू सर. Thank you.